ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरीके का बयान सिखा के गुरुओं से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री वालों दिता गया, की कहना चाहोगे? सर बहुत ही निंदायोग है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੱਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ 350 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬਣਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੈ, ਪੰਜ ਰੂਟ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਮਾਨਨੀय ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਵੀਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਔਰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਤਿਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, AI ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। AI ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰਾਏਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੂਪ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਸੀਟ ਤੋਂ, प्रतिपक्ष नेता तो, तब तक उन्होंने कोई माफ़ नहीं करेगा। सिख कौम तो बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। नाले एक चीज़ होर है कि जी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उन्होंने वाले भी नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन के कंप्लेन दी गई है, तो की कहना चाहूँगा? हाँ बिल्कुल दी गई कंप्लेंट। मैं भी जा रहा सी उधर, बाई चांस मेरे उत्थे, मैं दिल्ली कमेटी का मैंबर हाँ, बाई चांस उत्थे मेरे इलाके डेथ हो गई कोई, तो मैं उत्थे जाना पै गया क्योंकि टाइम 12 बजे का सी और 12 बजे संस्कार का सी, मैं नहीं पहुँच पाया। लेकिन वो कंप्लेंट इसीलिए करके दी है कि अगर इस तरह का चलता रहा भेदभाव और किसी ने भी आवाज़ ना चुकी, माननीय मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लिया और साढ़े दिल्ली के जोड़े अध्यक्ष है सचदेवा जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, उन्होंने अज प्रदर्शन कराया, जिसके नाल लग्या कि साड़ी कोई आवाज़ सुनने वाला है और कोई साढ़े हक च बोलने वाला है। जिवें तुसीं देख सकते हो कि सिख जिहड़े ने उन्हां दे विच काफ़ी रोष है। तो सर की कहना चाहोगे तुसीं इस जिहड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है उन्हां दे बयान ते आतिशी जी दे की कहना चाहोगे? देखो, जिस तरह का बयान आतिश जी ने शर्मनाक बयान जो दिता है साढ़े गुरुओं के बारे में, तो अज बीजेपी के जिन्ने कार्यकर्ता है पूरी दिल्ली के अज इकट्ठे हुए हैं उन्होंने विरोध करने वास्ते, तो उन्होंने इस्तीफा मंगने वास्ते। तो यह विरोध प्रदर्शन तद तक जारी रहेगा जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देगी। केजरीवाल ने भी शर्म करनी चाहिए कि उदी इस तरह की जी पूर्व मुख्यमंत्री हैगी है, केजरीवाल भी चुप हैगा तो आतिशी तो भगोड़ी बन के इतों दिल्ली छोड़ के चली गई है, जबकि उन्होंने सदन के विच रह के या तो माफ़ी मंगनी चाहिए सी, इस्तीफा देना चाहिए सी। ऐसे गुरुओं के बारे उन्होंने अभद्र बयान दिते हैं कि जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा वास्ते अपनी जान दे दी, अपने बच्चों की कुर्बानियां दे दी। अज आम आदमी पार्टी इस तरह की पार्टी बन गई है जिसे ना तो कोई सोच हैगी है तो ना कोई विचारधारा हैगी। उन्होंने एक ही काम है कि हिंदू की संस्कृति, सिखा की संस्कृति में किस प्रकार उन्होंने बेइज्जती की जाए, उन्होंने किस प्रकार खराब किया जाए। तो यह सोच के नाल वो पार्टी दिल्ली भी उन्हें 11 साल राज करके पूरी दिल्ली का सत्यानाश करता। तो हुण पंजाब भी जोड़ा भगवंत मान है वो भी रोज़ नवे नवे गुरुओं के बारे, गुरु घर के बारे अलग अलग उल्टे सीधे बयान दिंदा है। तो अज पूरा देश, पूरी दिल्ली की जनता, भारतीय जनता पार्टी पूरे आक्रोश ही चाहिए, तो पूरे देश की जनता आक्रोश ही चाहिए कि जब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा केजरीवाल आतिशी के विरोध या आतिशी खुद इस्तीफा नहीं देगी, तब तक इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन चलते रहेंगे। सर आप क्या कहना चाहोगे इसकी? ये जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं समय समय पर हमारे गुरुओं का अपमान करते रहते हैं और इस तरह का जो अपमान है हम सहेंगे नहीं। पूरा देश आक्रोशित है, पूरा देश परेशान है कि ये समय समय पर इस तरह का क्यों ऐसा काम करते हैं कि लोगों की धर्मों का
अपमान करते हैं। और आपने देखा होगा पिछले 10 साल जब इन्होंने सरकार चलाई तो किस तरह से इन्होंने सभी लोगों का अपमान किया। जगह जगह जा कर के अपने लोगों से ये कहा गया कि भाई ये शराब वाला मुद्दा था, मंदिरों के पास में इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए, स्कूलों के पास जाकर के ठेके खोल दिए। ये हमेशा इस तरह का काम करते हैं। ये लोग क्या हैं कि ये अराजक टाइप के लोग हैं, अराजकता फैलाते हैं हर जगह जाकर के। ये जी सर, और बीजेपी की जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन जो आतिशी हैं उनकी तरफ से कहा कि बीजेपी इसे अपने तरीके से अपने पॉलिटिकल के लिए इस्तेमाल कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने कुछ कहा है उसी पे प्रदर्शन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कभी और देश के लिए और भी बहुत सारे काम हैं। अगर हमारे गुरुओं का अपमान हुआ है, इसको नहीं सहेंगे, उनको माफ़ी हर हाल में मांगनी पड़ेगी। और आप जानते नहीं हैं कि हमारे धर्मों का इतना बलिदान दिया है उन्होंने इस देश के लिए, और आप अपमान करेंगे गुरुओं का? ऐसा नहीं सहेंगे हम बिल्कुल भी। सर, दिल्ली गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी है, उनकी तरफ से भी आज कंप्लेन दी गई है पुलिस थाने में। बिल्कुल उन पे एक्शन होना चाहिए, उन पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि इन पे जो है इस तरह की कार्रवाई हो ताकि आगे से कोई भी शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचें। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आतिशी मार लेना, जिसने विधानसभा के अंदर गुरु साहब दे बारे अभद्र टिप्पणी की है। हम उसकी सजा की मांग करते हैं। मैंने कल गोविंदपुरी थाने के अंदर उनके खिलाफ कंप्लेंट दी है और कंप्लेंट में सारी धारणाएं लिखी हैं। उसके तहत उनकी 3 साल की सजा बनती है, उनकी सजा होनी चाहिए और उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म होनी चाहिए। सर, और ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार बीजेपी ਵੱਲੋਂ एक ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है कि आतिशी ਨੂੰ हटाया जाना चाहिए ਵਾ, कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? उसी के तहत मैंने आपको बताया है कि मैंने कल गोविंदपुरी थाने के अंदर कंप्लेंट दी है। उनकी 3 साल की सजा बनती है, सजा होने के बाद उनकी सजा रद्द होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, इतनी ठंड होने के बावजूद इतने लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो ये इनका, आप पार्टी के लोग हैं, इनका डीएनए ही खराब है। इसी के माता पिता ने, आपको मालूम होगा, एक आतंकवादी को बचाने के लिए, अब्दुल को बचाने के लिए इन्होंने इसके पिताजी ने सिग्नेचर कैंप चलाया था। तो ये देश को तोड़ने वाले, देश में अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। इनकी जो सजा बनती है इनको सजा होनी चाहिए। जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, क्या कहना चाहोगे जो प्रदर्शन किया जा रहा है आतिशी के खिलाफ? देखिए, सिख के गुरुओं के बलिदान से भी आज हिंदुस्तान खड़ा है। हम गुरुओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा सिख गुरुओं का अपमान हो रहा है। और मरलीना जिस प्रकार गोवा में जाकर मरलीना बनती है और दिल्ली में आतिशी सिंह बन के जो घूम रही है, ऐसे बहुरूपियों को बेनकाब कर देंगे। और गुरुओं का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ये तुष्टीकरण का राजनीति करके जो देश में जहर घोल रहा है, ये अब देश की जनता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इसीलिए ये प्रदर्शन हो रहा है। गुरुओं के सम्मान में हमारा जान हाजिर है। हम गुरु का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो प्रदर्शन किया जा रहा है विधानसभा में, जो बोला गया था, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है, जो धर्म के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करने की जो कभी से केजरीवाल की पार्टी की है, वही काम आतिशी जी ने किया है। गुरुओं का जो सबसे बड़ी चीज़ है, अपमान करने का जो काम है और तुष्टीकरण जो करते रहते हैं, सिखों का जो अपमान है, ये सबसे बड़ा। आप आज के टाइम पे ये देखिए, जिन्होंने अपना शीश कटा दिया, उनका आज अपमान आतिशी मारलेना ने किया है। और ये इस तरीके का अपमान कोई भी धर्म, और बार बार इनका जो है एक हिंदू धर्म, सिख धर्म के प्रति जो इनका अटैक है, ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त के बाहर है। हमारे आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो बयान है ये तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, इसको बीजेपी जो अपने लिए या राजनीति के लिए इसको इस्तेमाल कर रही है। इसमें क्या तोड़ा क्या मरोड़ा गया है, उसने सरेआम मीडिया के सामने कहा है, कुत्तों का सम्मान करिए और गुरुओं का सम्मान करिए। तो उसमें क्या तोड़ मरोड़ के क्या पेश किया गया? कोई इसमें छेड़छाड़ थोड़ी की गई। उनकी ऑडियो से वो तो सरेआम जो है लाइव था, वो लाइव में वो चीज़ें उन्होंने कही हैं। तो क्या तोड़ मरोड़ के, कोई उन्होंने किसी निजी बयान थोड़ी दिया था। वो तो विधानसभा के अंदर कही हुई बातें हैं सारी पूरे, और लाइव चल रहा था सारा। तो उसमें क्या तोड़ मरोड़ की बात? उसमें कोई फिर
तो उनका साथ में ये भी कहना है कि बीजेपी इसे अपनी पॉलिटिकल तरीके से इसको इस्तेमाल कर रही है। नहीं, पॉलिटिकल तो इसमें कुछ है ही नहीं। जिसकी रगों में भारत माता का खून है, उनका खून जरूर उबाल देगा। जो भारत माता के गुरुओं के प्रति ऐसी टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। ये कोई इसमें कोई व्यक्तिगत कोई किसी वो लाभ लेने के कोई पक्ष में नहीं है। भारत माता का जो सच्चा सपूत, जिन्होंने हमेशा से गुरुओं को अपना आदर्श मान के काम किया है, और वो गुरुओं को लिए कुत्तों के बराबर जो टिप्पणी की गई है, ये बर्दाश्त से बाहर है।